Hanji bete. Very good morning once again. So as you can see on the board, today we are going to start our next chapter, measurement of national income. Okay, and I fully hope that you all would have tried to solve all the numericals which were based on various aggregates of previous chapter. Sufficient practice is required, and solved questions, unsolved questions that you have to do, and variety of examples I have solved for you in the class itself. Okay. So now coming to the next chapter, very important chapter. So before coming here, but we have to understand, we have to recall our previous chapter. In the beginning of this macroeconomics, we have covered one topic, circular flows. Okay. So if you remember, I try to tell that definition once again. Circular flow means the flow of production, income, and expenditure. Okay, flow of production, income, and expenditure in circularity, that is called a circular flow. This flow has no end, no beginning. It is continuous. It is forever since the evolution of various economic activities of the mankind. जब से start हुई है, that flow is always there. Okay, and it will remain times immemorial. पता नहीं कब तक ये रहेगा, जब तक human beings are there on this earth. Economic activities are certainly they are going to take place, so ये flow भी it is unending flow. Okay, तो main उसमें in that circular flow we have read three terms. One is production, one is income, and one is expenditure. Okay, अब ये क्या होता है? Our topic, our chapter is related to that. It starts from that point. So first of all, by using the factor services of various factors of production, the producers produce the variety of goods and services. So in the very beginning, the very act of production takes place, and how that action takes place with the help of factor services of various factors of production. Okay. Then after that production, when it gets over, काम हो जाता है, then all those factors who have helped, who have rendered their services in the production, all those factors, they get their reward, they get some remuneration, they get some income for the work which they have done. For why? For producing something. जो भी उन्होंने काम किया था, for that they get income. Then afterward, that is called the income phase, or first one is known as production phase. Then after receiving the income, all the factors, what do? They spend that money income on the purchase of different goods and services. Which goods and services? Which were already produced by the producer sector. So ultimately, what do we observe? कि production की form में whatever money has got generated, monetary form, physical form में, money form. So whatever value has got generated in the form of production, then it gets distributed among factors of production in the income phase, and ultimately in the expenditure phase, all that income which was received, that gets spent. वो खर्च हो जाती है किसके ऊपर? On the same goods and services which were produced by the producers. जो बनाया गया था उन्हीं सामानों के ऊपर ही that money gets spent. Ultimately, after expenditure, that money again goes back to the producers. आप और मैं, when we go to market, whatever we spend money, ultimately that money goes to the producers. हमने शॉपकीपर को दे दिया, शॉपकीपर ने आगे जहाँ से he has purchased the things, उसने आगे दे दिया. जब तक ये chain of people चलती रहती है, ultimately who gets that money? The producers. ठीक है, जिन्होंने बनाया था, ultimately money goes to them. So meaning of all this is that all the three phases, basically they are the three sides to observe the same thing. एक ही मनी वैल्यू को ऑब्जर्व करने के तीन वेज हैं, थ्री मैनर्स हैं, और वी कैन से इन ऑर्डर टू रीच एट वन डेस्टिनेशन देयर आर थ्री different passes या three different ways to reach, three different roads are there to reach at the same place. Value एक ही है, we can describe it in production form or income form or expenditure, किसी भी तरीके से we can explain. ठीक, now on the basis of those three bases, those three phases of circular flow, now we have to understand कि जो national income है, that can be assessed, that can be measured. उसका कैसे पता चलाया जाए कि कितनी भी national income है हमारे country की? How can we come to know about the amount of national income? So that amount we can assess, we can measure with the help of three methods. And which are those three methods? They are three methods are, you can write if you want.
Three methods are income method, production method and expenditure method. Okay, or if you want to write it in the beginning तो भी ठीक है. Production method पहले production होती है, production method, then income method and then expenditure method. ठीक है. So these are nothing, there is nothing new in these names. These are nothing else but the we can say elaboration of the three phases of circular flow. Means with the help of that circular flow, उसी के concepts की help से now we have to measure the national income. Okay. Now these three methods are there in our syllabus and we have to cover all the three. So I want to start with the easiest method, that is income method. Okay. Otherwise all three are to be done. सारे ही करने हैं हमने, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो इनकम मेथड, क्योंकि many things related to that we have already covered in our basic aggregates topic. So many things are similar, so it would be easy for you to understand by linking the that knowledge with the previous chapter. So I want to start with this. Okay, so you can just turn on few pages. On page number 4.7, this income method is given. So you can take out this page. Now, according to income method, what is the national income? According to this income method, national income is the sum total of all the factor incomes which get generated during the process of production. I repeat, according to this income method, national income is the sum total of addition of, किसका addition? Addition of all the factor incomes. कौन सी फैक्टर इनकम्स? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. यही फोर होती है हमारे फैक्टर्स होते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर, और ये उनकी फैक्टर वेजेस होती है या फैक्टर इनकम्स होती है. रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. सो व्हेन वी ऐड ऑल दीज फोर फैक्टर इनकम्स, देन व्हाटएवर टोटल वी रिसीव, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम. ठीक है. उसमें नेशनल इनकम में आगे हमने फिर जो रेजिडेंट्स हैं उनकी नेशनल इनकम या वो आगे करेंगे. अभी के लिए हम इतना ही कह सकते हैं, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स व्हिच गेट एक्रूड. एक्रूड मतलब व्हिच आर गिवन टू, किसको? व्हिच आर गिवन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है. सो दैट सबमिशन, दैट टोटल इज नोन एज नेशनल इनकम. ठीक. अच्छा, अब है इसमें नेक्स्ट हमारा पार्ट है, बस दिस इज द डेफिनेशन. नेक्स्ट पार्ट है व्हिच आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस इनकम मेथड. मतलब इसके आगे कौन से पार्ट्स हैं. So now I request you to please make a flow chart in your register. आप बनाइए साथ साथ में. I am going to do it on the, write it on the board. Please draw this. Please write this quickly. I repeat here, components of factor incomes or components of factor income or incomes, one and the same thing. First is compensation of employees. CE भी लिख सकते हो, COE भी लिख सकते हो, as you wish. Compensation of employees. Second is operating surplus. Third is mixed income.
So you all are familiar with these names already. We have discussed these in the basic aggregates chapter. Now compensation of employees further has 3 parts. So please write this information as in your book in this manner it is not given. So I request you to please note down this. 3 parts of compensation of employees are: number 1, wages and salaries in cash and kind. We have to keep it in first point. Book में there are 2 points made of these words. Cash का अलग बनाया हुआ है, kind का अलग है. We don't have to keep it separate. We have to bring it in one point. Wages and salaries in cash and kind. Second point is social security contribution by employer. ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है employers contribution to, ऐसे भी आप लिख सकते हो employers contribution to social security schemes या social security contribution, ये सेम ही है, इसमें there is no difference. Employers contribution to social security schemes, right? And third one is retirement pension. This point is missing in the book directly, so we need to write here retirement pension. ठीक है जी. Now let us see what is the meaning of all these 3 terms. Okay, very carefully. It would be better if you keep your videos on. There should not be any hesitation in keeping video on, because otherwise how will the teacher come to know whether you are sitting there or not? Yes, that's better. हाँ जी बेटे, अब ध्यान से आपने समझना, very easy and interesting. So first of all, we need to know the meaning of compensation of employees. Compensation means our remuneration, means our reward. So for what we get reward? For doing some work. Okay, as I gave earlier also this example, like the teachers are coming to school, for that work they are getting salary. Your parents are going for some job, so what are they getting? They are getting some salary, they are getting some income, they are getting some remuneration for the work which they have done for their employer. Okay, employer means जिसके लिए we are working, and we people are employees. जो काम करते हैं वे employees हैं, और जिसके लिए काम करते हैं उन लोगों को बोला जाता है employer, right? अच्छा, अब हमारे whenever we people do some work, तो बदले में we receive some income, उसी को हम क्या कहते हैं? compensation. compensation यहाँ पर वो मतलब नहीं है कि वो पहले भी बोला था कोई एक्सीडेंट का compensation मिल गया, कोई इंजर्ड हो गया किसी एक्सीडेंट में उसका कॉम्पनसेशन, अर्थक्वेक का कॉम्पनसेशन, वो वाला नहीं. काम के बदले में, फॉर रेंडरिंग, रेंडरिंग मींस फॉर गिविंग अवर सर्विसेज वी गेट सम इनकम, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन. ठीक. अच्छा, अब इसके फिर 3 पार्ट हो जाते हैं. फर्स्ट होता है वेजेस एंड सैलरीज. अब दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. वेजेस बात एक ही है कि काम के बदले में मिलने वाला मनी, बट थोड़ा सा उसकी कैटेगरी बना लेते हैं. नॉर्मली इकोनॉमिक्स में वेजेस उस इनकम को बोला जाता है विच वी गेट फॉर फिजिकल वर्क. लेबर का काम करते हैं ना, फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है तो लेबर लगी हुई है, फिजिकली दे आर वर्किंग. सो वट एवर दे रिसीव दैट विल बी नोन एज, उनकी इनकम को बोला जाता है वेजेस. है तो इनकम ही है, बट बोलने में इकोनॉमिक्स में ये टर्म दिया जाता है वेजेस. ठीक है, मतलब फिजिकल लेबर के लिए, ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए. ऑन द अदर साइड दोज पीपल हु वर्क इन सम ऑफिसेज, मेंटली जो अपना काम प्रोवाइड करते हैं अपनी नॉलेज के बेसिस के ऊपर, ऑफिशियल जॉब्स, दे आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर्ड लेबर. है तो वो भी लेबर ही है, व्हाइट कॉलर्ड है, ऑफिशियल काम करते हैं, और वो उनको जो इनकम मिलती है दैट इज कॉल्ड सैलरी. ठीक है, इज इट क्लियर? डिफरेंस क्लियर हो गया? है तो एक ही है, काम के बदले में ही मिल रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं कि जो फिजिकल वर्क पीपल आर डूइंग उनको मिलने वाली इनकम इज नोन एज वेजेस, एंड दोज पीपल हु आर डूइंग सम मेंटल वर्क, नॉलेज वाइज सम वर्क दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर डूइंग, उनकी इनकम को बोल दिया जाता है सैलरी या इनकम भी बोल देते हैं. ठीक, तो यहाँ पर दोनों का मतलब ये है, लेबर के बदले में हमें मिलने वाला मनी, हमने काम किया, चाहे ऑफिस में बैठ के काम किया, चाहे रोड पे खड़े होकर काम किया, कुछ भी किया, वी हैव डन द वर्क एंड वी आर गेटिंग इनकम, तो वो कहलाता है वेजेस एंड सैलरीज. अब ये जो वेजेस एंड सैलरीज हैं ये 2 तरह से हो सकती है. दीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है हमें कैश में. ठीक, जैसे आप किसी जगह सर्विस करते हो, वी पीपल आर डूइंग हियर सर्विस, तो बदले में हमें आफ्टर 1 मंथ वी रिसीव अवर इनकम, हमें चेक मिल जाता है. तो व्हाट इज दैट? हमारी इनकम इन कैश है, या हमें कैश मनी मिल जाता है. वो हमारे पास कैश पैसे आ गए थे, इतने हैं, इतनी इनकम है, वो सबको जो भी है वो मिल जाती है. ठीक. सेकंड, उसमें क्लियर है, मींस मनीटरी बेनिफिट्स.
आप किसी जगह जॉब करते हो, मान लो आपको 10,000 रुपीज इनकम मिलती है, तो आपकी मनी इनकम आपकी कही जाएगी सैलरी इन कैश 10,000 रुपीज, नकद पैसे मिलेंगे। ऑन दी अदर साइड वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, काइंड का मतलब होता है इन नॉन मनीटरी फॉर्म, कि हमें फायदा हो रहा है, हमें कुछ मिल रहा है, बट वो कैश फॉर्म में नहीं है, रादर सम अदर बेनिफिट वी आर रिसीविंग। जैसे आप किसी जगह काम कर रहे हो तो आपको सैलरी तो मिल रही है 10,000, उसके साथ ही आपको रहने के लिए एक रेंट फ्री एकोमोडेशन, एक क्वार्टर भी मिल रहा है आपको, 2 रूम सेट का, 2 रूम किचन, ये सारा आपको सेट रहने के लिए एकोमोडेशन मिल रही है, मतलब घर मिल रहा है। तो अब आप क्या है, वो एकोमोडेशन आपको क्यों मिली, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क विद दैट एम्प्लॉयर, आप उसके लिए किसी कंपनी के लिए जिसके लिए भी काम कर रहे हो, इसलिए आपको मिली है। तो दैट रेंट फ्री एकोमोडेशन, मतलब आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, आपको रहने के लिए जगह मिलेगी। तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर सैलरी, बट नॉट इन कैश फॉर्म, रादर इन नॉन मनीटरी फॉर्म। हमें वो फैसिलिटी मिल रही है, हमें वो सुविधा मिल रही है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर हम उसकी जगह उस घर में नहीं रहना चाहते, विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, तो हम कह सकते हैं भी नहीं जी, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, वी वांट टू स्टे समवेयर एल्स, हम किसी और घर में, अपने घर में रहना चाहते हैं, हमें इसके बदले में आप कैश पैसे दे दो। आपने जो हमें क्वार्टर दे रहे हो, मान लो उसका मार्केट जो रेंट बनता है, मान लो वो 3,000 रुपीज है, तो आप अगर तो वहां रह लेते हो तो इसका मतलब 3,000 के इक्वल यू आर गेटिंग द बेनिफिट, वो भी आपकी सैलरी ही है, बट नॉन मनीटरी, किसी चीज की फॉर्म में है, घर की फॉर्म में है। बट यू हैव द ऑप्शन, यू कैन आस्क योर एम्प्लॉयर कि आई डोंट वांट टू स्टे हियर, इसके बदले में आप मुझे 3,000 का जो रेंट है वो कैश फॉर्म में दे दीजिए, तो अगला दे देगा आपको, अगर देता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता सब जगह सब फैसिलिटीज हो। इन केस, मतलब ये भी एक चॉइस है, एक ऑप्शन है कि जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं इस तरह की फैसिलिटी। तो जो कहने का मतलब है, वट एवर अवर वेज और सैलरी है, वो कैश फॉर्म में भी हो सकती है, वो हमें नॉन कैश फॉर्म में भी हो सकती है। तो नॉन कैश के लिए वर्ड इज यूज्ड काइंड, काइंड मतलब किसी चीज के तौर पे, ठीक, कोई फैसिलिटी के तौर पे। जैसे सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, आपको मान लो कोई बाइक दी हुई है कंपनी ने जहां आप काम कर रहे हो, या कोई आपको कार दी हुई है, या कोई स्कूटर दिया हुआ है कि आप ट्रांसपोर्ट के लिए ये यूज कर सकते हो। ठीक, तो आपको वो भी फैसिलिटी मिली हुई है। या आपको मान लो आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स कहीं काम कर रहे हैं, तो उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि आप फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चे हैं उनको स्कूल में फ्री एजुकेशन, तो ये भी एक फैसिलिटी मिली हुई है। तो मतलब है कि हमें कोई फैसिलिटी के तौर पे भी हमें सैलरी मिल सकती है। सो इट इज अवर चॉइस वेदर वी वांट टू अवेल दैट फैसिलिटी, उसको उसी तरह से यूज करना चाहते हैं, और वी वांट टू गेट दैट कन्वर्टेड इन मनी फॉर्म, कि हम कहें नहीं जी, हमारे बच्चों की फीस 5,000 है, हम यहाँ स्कूल में, जो ऑफिस का स्कूल है कंपनी का, वहां नहीं पढ़ाना चाहते, हम कहीं बाहर पढ़ाना चाहते हैं, यू गिव अस 5,000 रुपीज, तो आपको वो मिलेंगे। तो मीन्स आपकी जो वेज और सैलरी है वो किसी कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी किसी फैसिलिटी काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है, चाहे उसमें आप रेंट फ्री एकोमोडेशन मान लो, बच्चों की एजुकेशन मान लो, या आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे दी जाए कि आप बीमार हो तो कंपनी के जो भी अपॉइंटेड डॉक्टर्स है वो आपका इलाज करें, आपका खर्चा नहीं आएगा। तो मीन्स वेरियस फैसिलिटीज कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। ठीक, तो आपकी चॉइस होती है एम्प्लॉय की कि वो उस फैसिलिटी को वेदर ही वांट्स टू अवेल इन दैट फॉर्म और ही वांट्स टू गेट इट कन्वर्टेड इन मनी फॉर्म। तो आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे दैट वे दैट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, चाहे उसको कन्वर्ट करवा लो मनी में, चाहे आप सीधे सीधे फैसिलिटी अवेल कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक, मतलब यू हैव द ऑप्शन। ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। ठीक, नाउ सेकंड वन इज, अच्छा बीच में वन लाइन इज गिवन देयर कि ड्यूरिंग द वर्क, काम करते हुए, लाइक फॉर एग्जांपल वन एग्जांपल इज गिवन कि कोई एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती है, यू जस्ट वियर दिस, कोई मशीन्स पे काम करना है या कोई पर्टिकुलर ऑफिस है, सम यूनिफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड यू आर आस्क्ड कि ड्यूरिंग द वर्क यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म। वो आपका अब ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट रिफ्यूज। आप नहीं कह सकते कि नहीं, मैंने वर्क प्लेस पे, फैक्ट्री में किसी जगह काम कर रहा हूँ तो आई विल नॉट वियर दिस यूनिफॉर्म, यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो वो यूनिफॉर्म आपकी वेज एंड सैलरी नहीं है, वो उस कंपनी का, उस फर्म का, उस प्रोड्यूसिंग यूनिट का, वो उसका अपना खर्चा है, इंटरमीडिएट खर्चा है, वो अपने खर्चे पे आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो दैट इज नॉट योर कंपनसेशन, दैट इज नॉट योर वेज और सैलरी। सो ऐसे ही यहाँ कोई जैसे फॉर डूइंग द ऑफिस वर्क सम व्हीकल इज प्रोवाइडेड, कोई ऑफिस के काम के लिए आपको कहा जाता है कि चलो आपने ऑफिस काम के लिए बैंक जाना है, तो ऑफिस का ही कोई व्हीकल आप यूज करो, स्कूटर यूज कर लो, बाइक यूज कर लो। तो वो जो स्कूटर और बाइक की फैसिलिटी है वो आपकी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश या काइंड नहीं है, वो तो
तो आप ऑफिशियल काम कर रहे हो, आपने वो यूज किया, वापस आके 1 घंटे में आप आ गए, यू हैव केप्ट दैट बाइक अगेन इन द कैंपस ऑफ योर ऑफिस, वही रख दिया प्रेमिसेस में, तो वो आपकी फैसिलिटी नहीं कहलाएगी. दैट विल बी द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म विच इज प्रोवाइडिंग दो सर्विसेज. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉई का देखना है कि आपको पर्सनली कहाँ फायदा हो रहा है अपने काम के बदले में, वो आपकी वेज एंड सैलरी होगी. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद है देन नेक्स्ट इज जो सेकंड पॉइंट है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, फॉर द वेलफेयर. ठीक है, आपकी या मेरी जो भी हम एम्प्लॉइज होते हैं, फॉर आवर वेलफेयर whatever efforts are made by our employer, हमें whatever benefits are provided not directly but in the form of some social security scheme, हमारे नाम के ऊपर कोई ऐसी कोई स्कीम स्टार्ट कर दी जाए या हमें किसी ऐसी पॉलिसी का पार्ट बना लिया जाए जिससे हमें बाद में फायदा हो, तो दैट इज नोन एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अब इसमें क्या आ जाता है, फ्यू एग्जांपल्स आर रिटन हियर, लाइक इसमें जो होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं ना, जो ओनर होता है वो अपनी तरफ से मनी देता है. तो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन है, जैसे प्रोविडेंट फंड है या ग्रेचुटी है या लेबर वेलफेयर फंड है. इस तरह के जो फंड्स होते हैं वहां पर हमारे हमारे मीन्स एम्प्लॉय के नाम के ऊपर वहां पर सेविंग की जाती है ड्यूरिंग द दिस टाइम स्पेन फॉर विच वी आर वर्किंग देयर. जैसे मान लो हमने किसी जगह 25 साल जॉब की है, 30 इयर्स जॉब की है, तो 30 इयर्स में हमारी वेलफेयर के लिए whatever contribution is made, whatever things are, whatever money is being given by the employer for our benefit, employees benefit के लिए, तो वो जो इकट्ठा होता जाता है अमाउंट, लंप सम हो जाता है एंड में जाके, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. मतलब जब तक हमारे काम से हटने की, रिटायर होने की एज आए, तो हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए, हम उसको यूज कर सकें. उसमें वन एग्जांपल इज गिवन ग्रेचुटी. आई थिंक शायद यू मे वुड हैव read about this in your business studies also. ग्रेचुटी होता है, हैव यू रेड इट, पढ़ा है इसके बारे में? नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल, जस्ट मीनिंग समय क्लियर होनी चाहिए. ग्रेचुटी होता है कि हमारी जब तक जॉब होती है, तो जॉब के जब तक वो फिनिश होती है, मतलब हमारी सर्विस ओवर होती है, तो हमें कुछ लंप सम अमाउंट दे दिया जाता है. लंप सम होता है इकट्ठा अमाउंट. ठीक है, जैसे मान लो हम कहें कि मान लीजिए केतन सेठी ने कहीं काम किया, सारी उम्र उसने काम किया, 30 इयर्स स्पेंड कर दिए सर्विस में, तो 30 इयर्स के बाद इसको मान लो मिल जाएंगे 2 मंथ्स की सैलरी, इसको मिल जाए इकट्ठी एक्स्ट्रा 2 मंथ्स की सैलरी इसको इकट्ठे, मान लो इसकी 1 मंथ की सैलरी है 10,000 रुपीज, तो जब ये अपनी जॉब से हटता है तो इसको ग्रेचुटी दी जाएगी 20,000 रुपीज, 2 महीने की सैलरी, 10 प्लस 10,000, ठीक है, 20,000. अगर कोई फर्म इस तरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने ही एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, अब एक सोचने वाली बात है, वो जो 20,000 रुपीज आर बीइंग गिवन टू अस, दे आर नॉट गिवन इन एनी फ्री फंड, दान कर दिया, हमें डोनेट कर दिया, नो, दैट मनी बिलोंग्स टू अस. हमने काम किया है वहां पे 25 ईयर, 30 ईयर, जितने भी ईयर्स काम किया है, वी हैव गिवन अवर सर्विसेज, वी हैव वर्कड हार्ड देयर, एंड एज पर द पॉलिसी ऑफ द फर्म दे एग्रीड इन द बिगनिंग. जब हमने वहां एग्रीमेंट किया था काम करने के लिए शुरू में, तो वो एग्रीमेंट हुआ कि हमें ग्रेचुटी भी दी जाएगी. ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपने याद रखना है. इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर एक चैप्टर हमने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो उसमें वी हैव रेड अबाउट फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर. इन 10th क्लास आल्सो इकोनॉमिक्स में यू रेड अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो जो होते हैं फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस विच फॉलो द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं. बट नॉर्मली व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन प्राइवेट सेक्टर, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज टू देयर एम्प्लॉइज. ठीक है, सबके लिए नहीं है ये. जो प्रोवाइड करते हैं, दोज हु फॉलो दीज रूल्स, वो देते हैं अपने लोगों को जो उनके यहाँ काम करते हैं. तो ग्रेचुटी मतलब एक लंप सम अमाउंट विच इज गिवन एट द एंड ऑफ द सर्विस. ठीक, ऐसे ही एक होता है प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ बोल देते हैं, ये सिंपली प्रोविडेंट फंड, और फुल फॉर्म होती है इसकी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. ठीक है, तो वो ईपीएफ, उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी ओर से कुछ परसेंट कंट्रीब्यूट करता है. मान लीजिए
2% मान लो फॉर एग्जाम्पल, 2% का मतलब है कि अगर हमारी सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपीज है, तो 2 रुपीज जो है दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, हमारे नाम के ऊपर एक अकाउंट विल बी ओपन प्रोविडेंट फंड का, 2 रुपीज विल बी गिवन बाय अवर एम्प्लॉयर, हमारा ओनर देगा, और 2 रुपीज ही हमारी सैलरी में से काटे जाएंगे। 2 रुपीज ही हमारी सैलरी में से काटे जाएंगे, दैट अमाउंट विल ऑल्सो बी केप्ट इन दैट प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो टोटल कितने हो गए? 4 रुपीज हो गए। 2 रुपीज बाय एम्प्लॉयर, 2 रुपीज फ्रॉम अवर इनकम, हमारी सैलरी में से चले गए, तो वो 4 रुपीज, हर मंथ वो 4 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जितनी देर भी हम काम करते हैं, एंड में जाके हम उसको निकाल सकते हैं, मतलब बीच में भी निकाल सकते हैं, बट इस तरह की भी फैसिलिटी दोज पीपल, दोज फर्म्स विच प्रोवाइड, तो वो प्रोविडेंट फंड की भी फैसिलिटी अपने लोगों को दे सकते हैं। या कोई और लेबर वेलफेयर फंड है, खास तौर पे ये ऐसी जगह होता है जहाँ पे मशीनों पे काम होता है ना, प्रोडक्शन यूनिट्स में, फैक्ट्रीज में काम होता है, कोई मशीनरी है, तो वहाँ पे मशीनरी पे काम करते हुए देयर में भी चांसेस ऑफ सम एक्सीडेंट, कोई इस तरह का काम है, कुछ एक्सीडेंट का खतरा, रिस्की काम है, काम करते हुए हो सकता है कुछ किसी हाथ पे चोट आ जाए या बॉडी को कोई इंजर्ड हो जाए, कुछ भी, मतलब एनीथिंग कैन हैपन विद मशीन्स। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज कि मतलब भगवान ना करे किसी का कोई एक्सीडेंट हो, बट स्टिल अगर हो जाता है तो उन लोगों की हेल्प के लिए, तो ऐसे वेलफेयर के लिए भी कोई ना कोई जो होते हैं एम्प्लॉयर होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो कोई स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो वो भी हमारी सैलरी का ही एक पार्ट है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर कंपनसेशन, बिकॉज दैट हेल्प इज नॉट बीइंग गिवन टू अस फॉर फ्री, rather that help is being given, that benefit is, help भी नहीं कहेंगे, that benefit is given to us because we are working for that, तो वो भी एक तरह से हमारे कॉम्पनसेशन का ही एक पार्ट। अगर हम वहां काम ना कर रहे होते तो थोड़ी हमें किसी ने कुछ देना था, nobody is going to give us anything, since we are working there for all these years, तो हमारे बेनिफिट के लिए if employer provides any such scheme that comes under this social security contribution, ठीक है। जो एम्प्लॉय आफ्टर रिसीविंग द इनकम अपने पर्सनली कोई अपनी इंश्योरेंस करवाता है, अपना कुछ अपना पर्सनल प्रोविडेंट फंड लेता है या अपना कुछ पर्सनल सेविंग करता है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड द कंट्रीब्यूशन। जैसे केतन को, अमनप्रीत इज विजिबल ऑन माई स्क्रीन, कनिका है, अनिरुद्ध है, ये चारों कहीं काम कर रहे हैं, सैलरी मिल गई इनको, बेनिफिट्स मिल गए सारे, उसके बाद अपने घर आके अपनी पर्सनली दे आर गेटिंग सम इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस का जो खर्च है वो इनका पर्सनल है, उसको नहीं कहेंगे कि दैट इज पार्ट ऑफ अवर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। वो जब हमें एक बार मिल गया वो तो बात खत्म हो गई, ठीक है। जो हमें एम्प्लॉयर ने दिया दैट इज टू बी कंसिडर्ड आफ्टर रिसीविंग दैट बेनिफिट, वट एवर वी डू विद दैट मनी दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बेनिफिट। वो तो हमारी चॉइस है, हम क्या खर्चा करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, रिटायरमेंट पेंशन। ये बुक में ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इसको अपने क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड। रिटायरमेंट पेंशन मींस कि व्हेन वी गेट रिटायर्ड फ्रॉम आवर सर्विस, ठीक है, तो वट एवर अमाउंट ऑफ मनी इज कंसिडर्ड एज, जो बचा के रखा गया था बाय द एम्प्लॉयर की एंड में जाके एज पेंशन देना है, व्हेन पीपल गेट रिटायर्ड फ्रॉम जॉब, फ्रॉम सर्विस, जो जिन जगह पे पेंशन दी जाती है, ठीक है, ये सभी के लिए नहीं है, एक याद रखना है, सारे प्राइवेट सेक्टर में नो रिटायरमेंट पेंशन इज प्रोवाइडेड, राइट, बट गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ ये प्रोवाइड किया जाता है, या जिन दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच फॉलो द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, whosoever provides, so after a retirement whatever money we receive as pension, that is also a part of our this compensation of employees, means वो जो पेंशन है हमें फ्री में नहीं मिली है कि यू हैव गॉट ओल्ड, अब आपकी एज हो गई है तो आपकी कोई हेल्प कर दे, नो, throughout of our service span, for how many years we have worked there, तो हमारी ही सैलरी में से कुछ कुछ पैसे काटे गए थे, अब वो हमारे ही पैसे हैं, वी हैव ऑलरेडी वर्कड फॉर दैट मनी फॉर 25 years 30 years, जितने भी साल काम किया है हमने ही सारी उम्र काम किया था उसके लिए, बट हुआ सिर्फ ये कि हमें वो साइड बाय साइड हमें हर मंथ नहीं मिले, हमारे ही पैसे एक जगह बचा के रखे गए, एंड व्हेन वी गेट रिटायर्ड तो हमें वो पैसे मिल गए, ठीक है। आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड from the employer, if we get pension then it will be known as retirement pension, after doing the services for throughout of our life, ठीक, तो that is also a part of our compensation of employees, इसका part है।
क्यों? बिकॉज ये तीनों चीजें जो है, ये इसमें से कुछ भी हमें फ्री में वी आर नॉट गेटिंग, इन सब के लिए हम काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर इज नॉट डोनेटिंग एनीथिंग टू अस, वो हमें डोनेट नहीं कर रहा है, हमारे काम के बदले में ही जो मिलने वाले पैसे हैं वही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में दे रहा है हमें। किसी जगह बीच में काट लिया, कोई वेलफेयर की हमारी कोई स्कीम ले दी, किसी जगह हमारे पेंशन के नाम के ऊपर पैसे काट लिए, किसी जगह कुछ हमें कोई फैसिलिटी दे दी या हमें कैश दे दिया, हमारे ही काम के बदले में, फॉर अवर वर्क, फॉर अवर सर्विसेज, all this money comes to us in the end. So all these, if we add these, you can you can put positive sign here, plus का sign, ये सबको add कर दे तीनों को, then we get the term compensation of employees. I hope I am clear up to this. ठीक है जी? So book में आप देखो, book में points ये बनाए हुए हैं, wages and salaries in cash, वो number 1 कर दिया. Then second point, they have made wages and salaries in kind. So basically that should not be second point, it is a part of first point itself. Number 2, जो number 3 है, that should be number 2, employers contribution to social security scheme, this one, ठीक है? And number 3 पे you can write on the book itself, retirement pension. ठीक? अब इसको आपने, you don't have to confuse it with old age pension. अब यहाँ ये भी समझ लीजिए, word which we have to use here, that is retirement pension. ये वर्ड नहीं यूज करना ओल्ड एज पेंशन. ओल्ड एज पेंशन क्या होती है? ओल्ड एज पेंशन इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट. अब आपने, यू वुड हैव सीन मेनी टाइम्स इफ यू गो टू बैंक्स, तो आप देखते होंगे वहां पर कई बार बैंक्स में ओल्ड पीपल आए होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, पेंशन के पैसे लेने, जो गवर्नमेंट की ओर से पेंशन देती है. ठीक है? तो वो सिर्फ उनकी एक हेल्प के लिए है, गवर्नमेंट की ओर से ओल्ड लोगों का, जिनका कोई और नहीं है देखने वाला, उनका ध्यान करने वाला सीनियर सिटीजन के तौर पे, तो नोबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम. तो अगर गवर्नमेंट, उन लोगों ने अप्लाई किया, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम चल रही है, तो वो जो ओल्ड एज पेंशन है, दैट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम, because for that old age pension those people have not worked anything for the government. उन्होंने कोई काम नहीं किया था, they did not do anything for the government or the state, but still as a help, as a we can say just kind gesture from the state side, state मतलब country government की side से, so as a kind gesture welfare के purpose से that money is being given to them as old age pension. तो वो जो मनी है उसके लिए they did not do anything, they have not given any service, so that is why that is a kind of transfer income. But this retirement pension, it is not a transfer income, rather it is an earned income. For getting this retirement pension we have worked throughout of our life. ठीक है? 25 year 30 35 जितने साल भी काम किया, we have worked, in lieu of our work we have got this. बट अदरवाइज जो ओल्ड एज पेंशन है, जो गवर्नमेंट वैसे ही देती है, दैट इज नॉट इन ल्यू ऑफ एनी वर्क. सो हियर डिफरेंस शुड बी क्लियर, इट इज फैक्टर इनकम या अर्नड इनकम है, एंड द ओल्ड एज पेंशन दैट इज ए ट्रांसफर इनकम. एक पीछे लेसन में किया था ना, ट्रांसफर इनकम्स आर अनअर्नड इनकम्स, बिकॉज उसके लिए वी डिड नॉट वर्क हार्ड, हमने कुछ किया ही नहीं उसके लिए, दैट इज ए वन साइडेड पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट. So यहाँ पर we have to use the word retirement pension, old age pension नहीं use करना है हमने. ठीक? So with this we have covered just first component, compensation of employees. So time is also going to be over. Next operating surplus we will start tomorrow. ठीक है जी? With this I want to thank you all.